Hello students, welcome back to TMI's home-based education. As we had done divisibility of 2, 3, 9, 5 and 10, let's move further in this chapter. So the next divisibility is divisibility by 4. So divisibility of 4 says that a number is divisible by 4 if its last two digits. अभी तक हमने जो पढ़ा था उसमें लास्ट डिजिट ही आ रहा था, बट इन डिविजिबिलिटी बाय 4 इट विल बी लास्ट टू डिजिट इफ इट्स लास्ट टू डिजिट्स आर जीरोस, या तो दोनों लास्ट के जो डिजिट है दैट शुड बी जीरो, और इट शुड बी डिविजिबल बाय 4। या तो लास्ट के दो डिजिट जीरो होने चाहिए, नहीं तो फिर वो दो डिजिट 4 से डिवाइड होने चाहिए, देन वी कैन डिवाइड दैट होल नंबर बाय 4. So here I had written the first example. It is 14,560. So what here it is being written, that is last two digits. So here also we'll write last two digits, that is equal to 60. अभी कंडीशन क्या थी, या तो लास्ट के दोनों डिजिट जीरोस होने चाहिए, नहीं तो अगर जीरो नहीं है लास्ट के दो डिजिट तो वो 4 से डिवाइड होने चाहिए. तो यहाँ पे तो एक ही जीरो है, मीन्स वी हैव टू डिवाइड इट बाय 4. ओके, सो नाउ 60 को जब 4 से डिवाइड करोगे सो इट विल कम टू 15, बिकॉज 15 4s आर 60, मतलब डिवाइड हो गया. सो व्हाट वी कैन राइट, जैसे पहले लिखते थे वैसे 14,560 इज डिविजिबल बाय 4. क्यों? क्योंकि लास्ट के दो डिजिट जीरो तो नहीं है, लेकिन लास्ट के दो डिजिट 4 से डिवाइड हो रहे हैं, दैट्स व्हाई दिस नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 4. लेट अस सी सेकेंड एग्जाम्पल. 6,800. Again what we'll write, last two digits is equal to zeros. यहाँ पे तो जीरोस आ गए लास्ट के दोनों डिजिट, जैसे डेफिनेशन में भी लिखा है लास्ट के दो डिजिट या तो जीरो होने चाहिए, नहीं तो वो डिविजिबल बाय 4. But here in the question, as according to the question, we found that last two digits are 0. So we can write directly, therefore 6,800 is divisible by 4. देखो दोनों कंडीशन का एक एक से हम करवा दिया. अगर लास्ट टू डिजिट जीरो है देन द नंबर इज डिविजिबल बाय 4. अगर लास्ट के दो नंबर जीरोज नहीं है देन it should be divisible by 4. Then the whole number we can divide it by 4. Let us see one more example. 2, 3, 7, 5. Now last two digits is equal to 75. As it is not zero, so it should be divisible by 4. अब 4 का टेबल आप कहीं भी देख लो, उसमें लास्ट में कभी भी 5 नहीं आता है. सो as usual what we will write there, not possible, therefore 2,375 is not divisible by 4. Okay, so all the three example we had done. First two, both the condition which is being given in the definition, according to that the example is being there. Third one is there where it is not possible. Now, so according to that, again I am giving you extra sums which you have to do it in your fair book. Okay. So student, these are the extra sums which you have to do it after writing the definition, 3 example, and then as I had told before also, एक लिखना है उसको क्वेश्चन लिखना है, फिर उसको सॉल्व करना है, फिर सेकेंड क्वेश्चन लिखना है उसको सॉल्व करना है, and like that you have to do all the 5 sums. Okay, so this was your divisibility by 4. Now let us move further in this chapter. Next we'll go with divisibility by 6. Okay students, so this is your divisibility by 6. Divisibility by 6 is that a number is divisible by 6 if it is divisible by 2 and 3 both.
कोई भी नंबर 6 से कब डिवाइड होता है, जब वो 2 और 3 दोनों से अगर डिवाइड हो सकता है तो वो पूरा नंबर 6 से डिवाइड हो सकता है. Okay, that is the main thing, that a number is divisible by 6 if it is divisible by 2 and 3 both. मतलब 2 से भी डिवाइड होना चाहिए, 3 से भी डिवाइड होना चाहिए, and then only it will be divisible by 6. So as I had written one example, अभी divisibility of 2 you are knowing. Divisibility by 2 में क्या होता है, that the last digit should be either 0, 2, 4, 6 or 8. So first what we will write, last digit is equal to 2, or the last digit already 2 is, so we can write what, therefore 13,482 is divisible by 2. अब 2 से तो हो गया. नाउ विल गो फॉर 3. सो 3 की डिविजिबिलिटी क्या है, दैट इज सम ऑफ डिजिट. अगर सम ऑफ डिजिट इज डिविजिबल बाय 3 देन द होल नंबर इज डिविजिबल बाय 3. सो व्हाट विल राइट, सम ऑफ digits is equal to 1 plus 3 plus 4 plus 8 plus 2. Okay, so now we'll add 3 plus 1 it's 4, 4 plus 4 is 8, 8 plus 8 is 16, and 16 plus 2 is 18, and 18 is divisible by 3, that is 3 6s are. So what we can write, that 13,482 is divisible by 3. अभी देखो, now see students, what we had done, first we had find the divisibility by 2 and then by 3. अब दोनों में देखो क्या आया, is divisible by 2 and is divisible by 3. अगर कभी ऐसा हुआ कि दोनों में से एक में भी अगर not divisible आया, then that number is not divisible by 6. दोनों में is divisible ही आना चाहिए compulsory. So now finally what we can write, so therefore 13,482 is divisible by 6. क्यों ये लास्ट में लिखा, क्योंकि हमें फाइंड आउट करना है वेदर द नंबर इज डिविजिबल बाय 6. तो रूल क्या है, इट शुड बी डिविजिबल बाय 2 and 3 बोथ. पहले हमने 2 की डिविजिबिलिटी चेक की, वहाँ पे पता चला दैट इट इज डिविजिबल बाय 2. देन वी हैड गॉन टू द डिविजिबिलिटी बाय 3, देयर ऑल्सो वी फाउंड दैट इट इज डिविजिबल बाय 3. सो जब दोनों से डिवाइड हो रहा है देन फाइनली डायरेक्टली वी कैन राइट दैट देयरफॉर दैट नंबर इज डिविजिबल बाय 6. ओके, let us take another example, 5102. So again the same process, we have to check whether it is divisible by 2 and then divisible by 3 or not. So for 2 again what we will write, last digit is equal to 2, and therefore 5102 is divisible by 2. पहले हमें 2 से 2 की चेक करना है, then we have to move to 3. Now for 3 what we will write, sum of digits is equal to 5 plus 1 plus 0 plus 2. So 5 plus 1 is 6, 6 plus 0 is 6, and 6 plus 2 is 8. And 8 is not divisible by 3. So what we'll write, not possible. Therefore 5102 is not divisible by 3. Okay, 2 से हुआ लेकिन 3 से नहीं हुआ. So what will be the final statement, therefore 5102 is not divisible by 6. एक में डिविजिबल हुआ, डिविजिबल बाय 2 हुआ, डिविजिबल बाय 3 किया तो नहीं हुआ, तो फिर
वो 6 से भी नहीं होगा। इफ इट इज डिविजिबल बाय 2 and 3 बोथ, then only that number will be divisible by 6. अगर एक में है एक में नहीं है, then that number cannot be divisible by 6. Okay, so this thing you have to keep it in mind that 6 की divisibility क्या है, that the number is divisible by 6 if it is divisible by 2 and 3 both. Now related to that, again extra 5 sums I am giving you, which you have to do it by yourself. Okay students, so these are the extra sums which you have to do it by yourself. Just one suggestion I want to give regarding that is कि लास्ट डिजिट देखो, यहाँ पे जो हमने एग्जांपल किया था, इन दिस एग्जांपल वी गॉट दैट दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 2, लेकिन कभी कोई ऐसा भी एग्जांपल आएगा वेयर यू विल गेट दैट इट इज़ नॉट डिविजिबल बाय 2. अगर स्टार्टिंग में इफ़ यू आर गेटिंग दैट इट इज़ नॉट डिविजिबल बाय 2, तो फिर ये इतना काम करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, दिस मच वर्क. अगर 2 में ही पता चल गया दैट इट इज़ नॉट डिविजिबल बाय 2, तो फिर वो 3 से होगा तो भी वो 6 से तो नहीं होगा. ओके, लाइक हियर क्वेश्चन नंबर 5, इट इज़ 2105 एंड द लास्ट डिजिट इज़ 5, सो इट इज़ नॉट डिविजिबल बाय 2. तो इतना करने के बाद डायरेक्टली लास्ट स्टेटमेंट लिख देना है, देयरफॉर दैट नंबर इज़ नॉट डिविजिबल बाय 6. फिर 3 से करने की कोई ज़रूरत नहीं है. दिस मच वर्क यू डोंट हैव टू डू. अगर 2 में ही पता चल गया कि 2 की डिविजिबिलिटी जब हम चेक कर रहे हैं तभी पता चल गया दैट इट इज नॉट डिविजिबल बाय 2, देन डोंट डू दिस मच वर्क. 3 की डिविजिबिलिटी फिर चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली यू कैन राइट दैट दैट नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 6. इतना करना है, जस्ट 2 की डिविजिबिलिटी चेक करो, अगर वहाँ पे आता है दैट इट इज़ डिविजिबल तो 3 से करना है. अगर स्टार्टिंग में ही 2 की डिविजिबिलिटी में अगर आ गया दैट इट इज़ नॉट डिविजिबल बाय 2, तो 3 की डिविजिबिलिटी चेक ही नहीं करनी है, डायरेक्ट इतना लिखने के बाद द लास्ट स्टेटमेंट शुड कम दैट दैट नंबर इज़ नॉट डिविजिबल बाय 6. ओके, सो दैट मच यू हैव टू टेक केयर के अगर स्टार्टिंग में ही 2 में अगर नॉट डिविजिबल आया तो 3 का चेक करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि लास्ट में हमको क्या मिलेगा दैट इट इज़ नॉट डिविजिबल बाय 6. सो इट्स बेटर 2 से नहीं हुआ तो डायरेक्ट लास्ट में लिख दो दैट देयरफॉर दैट नंबर इज़ नॉट डिविजिबल बाय 6. 3 की डिविजिबिलिटी चेक करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है. ओके, सो इन दिस वीडियो दिस मच ओनली. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो with the exercise of this chapter, exercise 1. So till then, thank you and take care.